Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Namaskar and welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Lalema Aneja Dang and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई प्रमुख कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से जुड़ी ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं आउटलुक हिंदी के संपादक हरवीर सिंह। हरवीर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं लालिमा अनेजा डैंग। जी, थैंक यू मनोज। Yes, we begin with the headlines. Benchmark domestic stocks decline around 1%. Sensex closes below 36,000 mark. Nifty ends under 10,800 level. Rupee weakens 74 paise to trade above 70 rupees per US dollar. And Vice President handovers 6 crore Ujjwala gas connection to the beneficiary. घरेलू शेयर बाजार में बिकवाली तेज, प्रमुख सूचकांक 1% के आसपास घाटे में रहे। सेंसेक्स 36,000 के स्तर से नीचे आया। निफ्टी 10,800 के स्तर से नीचे फिसला। $1 की तुलना में रुपया हुआ 74 पैसे कमजोर, 70 रुपए के स्तर से नीचे आया $1 की तुलना में। और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 6 करोड़वें लाभार्थी को गैस कनेक्शन दिया। घरेलू शेयर बाजार में आज कुल मिलाकर बिकवाली तेज रही और प्रमुख सूचकांक लगभग 1% घाटे के साथ बंद हुए। एशियाई बाजारों में कमजोरी, एफआईआईज की बिकवाली और रुपए में बड़ी गिरावट से बाजार में लगातार कमजोरी देखने को मिली। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 363 अंक घटकर 35,892 पर आ गया। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 118 अंक कम होकर 10,793 दर्ज हुआ। छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों की बिकवाली भी तेज रही। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 1.26% और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.74% नुकसान के साथ बंद हुआ। Benchmark domestic stocks, Sensex and Nifty today closed with losses of around 1%. The fall came amid weak cues from other Asian markets, foreign fund outflow and more than 50 paise fall in the rupee. Sensex at the Bombay Stock Exchange ended 363 points, down at 35,892. Nifty at the National Stock Exchange also declined 118 points to settle at 10,793. The S&P BSE Mid-Cap Index dropped 1.26%. The S&P BSE Small Cap Index fell 0.74%. Market breadth indicating the overall health of the market was weak. On the BSE, 950 shares rose and 1,601 shares fell. A total of 166 shares were unchanged. The biggest losers in the Sensex pack were Vedanta, Tata Steel, M&M, Tata Motors, Maruti, Hero Motocorp, Power Grid, Bharti Airtel, SBI and Coal India, falling up to 4.48%. Among the winners were Sun Pharma, TCS, Asian Paints, Infosys, Yes Bank and ICICI Bank, rising up to 1.66%. Among the sectoral indices on the BSE, metal down 3.5%, auto down 3%, and consumer discretionary goods and services down with 1.8% underperformed the Sensex, while IT up 0.3%, tech almost flat and healthcare down with 0.54% outperformed the Sensex. Harveer, how significant do you think is this loss of 1% at the Sensex? Actually, there are multiple reasons behind that, some domestic as well as the global, because markets were not performing well in the international market, if you see. And a slowdown in China because their manufacturing contracted first time in 2 years.
And at the same time, we also have our this purchasing managers index also a little bit down. And if you see the number in December, it's not particularly auto sector did not perform very well. So there are multiple. Actually, this is a mix of developments and happenings around affected the market that way. बाजार की गतिविधि पर हम और विशेषज्ञों की राय शामिल करना चाहेंगे कार्यक्रम में और आमंत्रित करेंगे शेयर बाजार के जाने माने विशेषज्ञ अविनाश गोरखशकर को। अविनाश जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग। अविनाश जी, समझना चाहेंगे हम बाजार की आज की गतिविधि को। रुपए में हम बड़ी गिरावट देख रहे हैं, एफआईआई की बिकवाली भी हुई है और कुल मिला के 36,000 के स्तर से एक बार फिर सेंसेक्स नीचे आ गया है। मुख्य क्या कारण रहे आपकी दृष्टि में शेयर बाजार में आज की गिरावट के? पहली बात तो मार्केट में जिस प्रकार का मूड आज था वो बेसिकली सुबह हांगकांग के मार्केट से न्यूज फ्लो थोड़ा सा नेगेटिव आने के कारण हुआ। वहां पे जो प्रेसिडेंट किम है उन्होंने कहा कि आगे आने वाले दिनों में अगर न्यूक्लियर ट्रीटी पे कोई समझौता या बराबर एग्रीमेंट यूएस के साथ होता नहीं है तो वापस मामला थोड़ा बिगड़ सकता है। और यही बात को लेके सुबह हैंगसेंग काफी निचले लेवल पे खुला और ये एक मात्र कारण रहा कि पूरे दिन भर ग्लोबल न्यूज फ्लो का इम्पैक्ट हमारे इंडियन मार्केट्स में देखने को मिला। चाइना से भी डेटा थोड़ा सा कमजोर आया। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का डेटा थोड़ा कमजोर होने के कारण ऐसा लग रहा है कि शायद जो यूएस और चाइना का जो टैरिफ वॉर है वो अभी अगर आगे यहाँ पे कोई सोल्यूशन निकलता नहीं है तो इमर्जिंग मार्केट जैसे इंडिया को भी आगे दिक्कत हो सकती है। ओवरऑल हमको लग रहा है कि ये जो ग्लोबल फॉल का जो रीजन है वो शायद 1-2 दिन चलेगा और उसके बाद आने वाले हफ्ते में जो नतीजों का सीजन है उसके ऊपर सबकी नजरें रहेगी, क्योंकि काफी बड़ी कंपनीज अभी अपने Q3 के नंबर्स प्रेजेंट करेगी। तो हाल ही में तो हमको लग रहा है कि मार्केट्स एक थोड़ा सा नेगेटिव बायस के साथ ही 1-2 दिन ट्रेड करना चाहिए। Avinash, yesterday we had this report about President Trump talking to the Chinese Premier Xi Jinping, and he said he had some great news to offer. One could only speculate what this great news is going to be, but do you see the shadow of the US-China talks and the way it's going over the overall global economy? How do you view that? I think clearly, Donald Trump's tweet yesterday was quite, encouraging. But if you ask me, the kind of commentary which has come from North Korea's President, Mr. Kim, very clearly hints that, matters have not completely been resolved. And I think to a large extent, the US-China tariff issue also is yet not completely resolved, although there are expectations that in the medium term, these issues would be resolved amicably. I would believe that, in the near term, this kind of volatility and uncertainty will continue, and this is definitely been seen in the kind of erratic and the volatile movements both in the Dow internationally as well as, our, indices, both the Sensex and the Nifty for the emerging markets like India. So I would believe that, markets are going to be on their toes, at least till the time they don't get clarity on how these issues are going to be resolved. And I think clearly the reason is, very clear. I mean, US is still trying to impose a dominant force on China, which China is not going to take it lying down. So I would believe that, it's better to wait and watch. Mm-hmm. But overall, the market mood is going to be cautious, at least from a global perspective. And Avinash, we saw that the mid-cap index dropped and the small-cap index dropped as well. Do you see the role of some domestic factors in this entire figure? I think clearly my sense is mid-cap indices have been on the downside largely because there have been expectations that, mid-cap stocks have not delivered in the last 3 to 6 months. And I think investors have lost a lot of money, by buying mid-caps in the year 2018 and are still stuck up with several mid-caps, which they have bought at pretty high expensive valuations. So I think unless and until we see, the earnings recovery in most of these medium-sized and mid-cap companies, it is unlikely that we may see a very big sporadic rise, at least in the near term. Our sense is that, possibly, the mid-caps have been beaten down quite considerably. But the risk-reward, as of now, I think would be better that one looks at the frontline larger companies, and mid-caps should be a reasonable and a small percentage of the investors' portfolios.
अविनाश जी, आपने कहा कि जो Q3 के रिजल्ट आएंगे उन पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। जो बिक्री के आंकड़े आए हैं खासतौर से ऑटो के क्षेत्र में या विभिन्न अन्य कंपनियों के जो सौदे संबंधी खबरें आए हैं, उससे क्या आसार लग रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था को लेके जो उम्मीदें व्यक्त की जा रही हैं, सबसे दुनिया में हम तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था हैं, तो औद्योगिक उत्पादन का जो हमारा आंकड़ा आया यानी पिछला, उसके अलावा मुद्रास्फीति हमारे लगातार नियंत्रण में बनी हुई है, वैसे में कुल मिला के कैसे आसार दिख रहे हैं आपको कंपनियों के परिणाम के? नहीं, मुझे लग रहा है आपने सही कहा कि जो हाल ही में जो ऑटोमोबाइल कंपनीज के जो आंकड़े आए हैं वो डेफिनेटली निराशाजनक है। अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें, महिंद्रा की बात करें, आयशर मोटर्स की बात करें, जो करीबन 5-6% आज गिरा है, तो डेफिनेटली आने वाले तीसरे तिमाही में जो ऑटोमोबाइल कंपनीज रहेंगी वहां पे नतीजे सॉफ्ट होने का अनुमान है। ऑटो कंपोनेंट कंपनी जो इन कंपनीज को कंपोनेंट सप्लाई करती है, वहां पे भी इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए क्योंकि नतीजे यहाँ पे खराब आने की उम्मीद है। लेकिन ओवरऑल हमको लग रहा है कि जो कैपिटल गुड सेक्टर है, रूरल रिलेटेड सेक्टर्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सीमेंट है, यहाँ पे नतीजे अच्छे आने की उम्मीद है। हो सकता है कि Q3 में जो खराब सेक्टर्स है उनमें से ज्यादातर आपको ये ऑटो और ऑटो कंपोनेंट्स रहे। आई थिंक मेरे ख्याल से जो ब्राइट स्पॉट्स रहेंगे, जैसे मैंने कहा कि कैपिटल गुड्स और टिपिकली जो रूरल रिलेटेड सेक्टर्स है और प्लस जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां है, इनके लिए भी थोड़ी सी अच्छी न्यूज है क्योंकि क्रूड करीबन 15-16% पीक से गिरा हुआ है। तो यहाँ पे डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को नजर रखनी चाहिए। मोटा मोटी नंबर्स ठीक ठाक रहेंगे, बट कई सेक्टर्स डेफिनेटली अंडर परफॉर्म करेंगे। जो अभी नंबर्स में ऑटो की बात आपने की, वो काफी क्लियरली डिपिक्ट कर रहा है कि इस क्वार्टर में नतीजे सॉफ्ट रहेंगे। अविनाश जी, हम आपका ध्यान आज जो सबसे बड़ी गिरावट के शिकार हुए हैं क्षेत्र, खासतौर से धातु यानी मेटल, 3.5% इंडेक्स नीचे गया है। इसे हम चीन से जोड़ के देखें, चीन के जो आंकड़े आए हैं उससे जोड़ के देखें, या कोई और भी कारक रहा? मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली मेटल एक ग्लोबल कमोडिटी है और जब भी ग्लोबल मार्केट्स करेक्ट होते हैं तभी मेटल्स यहाँ पे इंडिया में अंडर परफॉर्म करते हैं। और अगर चाइना के नंबर्स पे अगर हम अच्छी तरह से देखें तो ये अगर जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में स्लोडाउन आया है, अगर और थोड़ा सस्टेन होता है तो ये डेफिनेटली इंडियन मेटल कंपनीज के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इसका एक मेन रीजन ये रहेगा कि ग्लोबली प्राइसेस करेक्ट होंगे और प्राइसेस अगर कम होंगे तो कंपनी के मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी पे दबाव रहेगा। तो मेरे ख्याल से एक आध क्वार्टर मैं समझता हूँ कि शायद मार्केट्स कोशिश करेगा कि ये ट्रेंड सही है या गलत है, इसकी कोशिश वो करेगा। बट अगर ये चाइना की वीकनेस कंटिन्यू होती है तो डेफिनेटली मेटल कंपनीज के लिए आगे दिक्कतें बढ़ सकती है। Avinash, Indian markets cannot be immune to what's happening in the global arena, but back home we know that the Reserve Bank of India has opened a loan restructuring window for micro, small and medium enterprises for a year. What effect do you think it will have on the Indian markets? No, I think clearly, for the RBI decision of giving some relaxation to the MSEBs up to say 25 crores of loans which have been disbursed is definitely a positive. You'll find definitely some positives coming to the public sector banks, because these banks have lent a reasonably large amount of funds and money to the MSEBs, and therefore definitely a restructuring of these loans would obviously mean that these companies would not be classified as proper, non-performing assets. There are some NBFCs also which primarily lend to the MSEB and the SME sector. So broadly, this decision is positive, but the impact of this decision in actual number terms could get reflected only after a couple of quarters. Right. Thank you so much, Avinash Gorakshakar, for talking to us. That was our expert market analyst, Avinash Gorakshakar, talking to us on the market trends and Sensex. आइए अब पहले चलें वैश्विक बाजारों की ओर। चीन से आए आर्थिक आंकड़ों का आज प्रमुख एशियाई बाजारों पर विपरीत असर देखने को मिला है। एक निजी सर्वेक्षण में ये कहा गया कि चीन में दिसंबर महीने में पहली बार फैक्ट्री उत्पादन में पिछले 19 महीने के दौरान कमी देखने को मिली है। आंकड़ों के अनुसार घरेलू और निर्यात सौदों में इस दौरान उल्लेखनीय कमी आई, जिसका असर सभी बाजारों पर दिखा है। सबसे अधिक प्रभावित हुआ हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक, जहां 2.23% की गिरावट देखने को मिली। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.5% लुढ़क गया। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 1.2% और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 1% नीचे आकर बंद हुआ। उधर जापान के निक्की सूचकांक में 0.3% की कमी आई।
यूरोपीय बाजारों की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक नरमी दिख रही थी। अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 0.6% और फ्रांस का CAC 40 1.5% नीचे कारोबार कर रहा था, जबकि जर्मनी का डैक्स भी 0.2% नीचे ही चल रहा था। हरवीर जी, वैश्विक स्थितियों पर हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। खासतौर से चीन में 19 महीने के दौरान पहली बार घरेलू और निर्यात दोनों तरह के जो फैक्ट्री प्रोडक्ट हैं उनमें कमी देखने को मिली है। एक निजी सर्वेक्षण में क्या जता रहा है ये? गति धीमी पड़ रही ड्रैगन की? देखिए, ड्रैगन की गति काफी हद तक जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसके हिसाब से होती है, और इस तरह के इंडिकेशन आ रहे हैं कि 2019 में जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसमें कुछ स्लो डाउन की आशंकाएं बन रही हैं, और उसका इम्पैक्ट हमें कई जगह देखने को मिलता है। अगर एनर्जी प्राइसेस को देखें, वहां भी उसका इम्पैक्ट आ रहा है। और जो चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग का डाटा है वो उसको रिफ्लेक्ट करता है। करीब करीब 2 साल में पहली बार जो है वहां पर ये मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट हुई है। दूसरे, जो चीन और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड वॉर की स्थिति है उसका इम्पैक्ट लगता है कि जो टैरिफ जो बढ़ाए गए थे वो कुछ कहीं दिखने लगा है। तो एक अजीब से ब्लॉक्स आपस में अलग प्रतिकूल स्थितियों में है इस वक्त। यूरोप अलग तरीके से है, चाइना अलग है और अमेरिका अलग है, और ये 3 बड़े ब्लॉक हैं दुनिया की इकोनॉमी के। जापान को अगर हम थोड़ा सा अलग रख दें इससे, तो ये पूरा जो ग्लोबल इकोनॉमी का जो इंजन है वो उसके मेन जो गियर्स हैं वो कहें तो वो तय करते हैं कि किस तरफ ग्लोबल इकोनॉमी जाएगी। जब वहां पर दिक्कत आती है तो नेचुरली उसका इम्पैक्ट दिखेगा और ग्लोबल इकोनॉमी पर दिखेगा, तो उससे जो दूसरे इकोनॉमीज हैं उनके ऊपर भी असर आएगा। जैसे हमारा देश है उसमें जो इमर्जिंग मार्केट्स दूसरे हैं, हालांकि जो दूसरी इमर्जिंग इकोनॉमी या हम लोग कहते थे जो ब्रिक्स कंट्रीज का जो एक ब्लॉक था उसमें इंडियन इकोनॉमी अच्छा करती रही है, और जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका आकलन भी है कि इंडियन इकोनॉमी करीब 7.6%, मतलब 7.5% से ज्यादा की वृद्धि दर रहेगी इसमें 2019 में, क्योंकि वो लोग कैलेंडर ईयर के हिसाब से फोरकास्ट करते हैं। तो उसको लेकर के बहुत ज्यादा चिंता तो नहीं है, लेकिन यह है कि अगर ये ग्लोबल इकोनॉमी में परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं ज्यादा तो उसका असर और बड़ा होगा फिर। Harveer, let's talk about inflation. We can say that inflation has been contained in the last few months, but also we can say that consumer price index inflation rate is very low. We can say it's almost close to deflation. Or is it just a seasonal thing? What is your opinion on this? No, actually, we can say a little bit seasonal, but it's not purely seasonal. Because if you see the CPI, if CPI is almost near zero, in that case the prices are not increasing. And in any economy, to grow the economy, you need little bit inflation, because inflation gives incentive to also to some section. So if prices not goes up, so the producer will get disillusioned sometime. Particularly if you see the prices, food prices are going down, also a negative zone. Prices are stagnated or contracted for many commodities. It means that it is affecting farmers' income. So if they are not getting good income, so it will have a double impact. They are not very encouraged to grow better crop. At the same time, it also affects the demand in the rural area. So at the same time, even in manufacturing side also, other than food items, inflation is not very high, and prices maybe a little bit increase in the price. But a major role, I think, energy prices are playing very important role in this low side of inflation, because we have to spend a lot of money on import of energy resources like oil and all. But in the international market, in the last few days, prices have gone down very sharply, basically, and simultaneously the prices for these energy products, petroleum products also has gone down in the Indian market also. So that also have a direct impact on inflation, because if energy prices are going down, so basically the weightage in the inflation from the energy products also goes affects the growth, basically rate of inflation here.
So we can say that negative inflation works as a kind of a disincentive to some people. Some people, of course. हरवीर, हम आपका ध्यान खींचना चाहेंगे। आप होते हैं तो कृषि क्षेत्र हमें अनायास दिखना शुरू हो जाता है, और प्रधानमंत्री ने भी हाल ही में कहा कि कृषि क्षेत्र पर ढांचागत सुधार की आवश्यकता है। आप सरकार ने कई उपाय किए हैं, किसानों की आमदनी दोगुनी हो सके उस दिशा में न्यूनतम समर्थन मूल्य कई फसलों के बढ़ाए गए हैं। उसके बावजूद जो किसानों को लाभ मिलना चाहिए वो उतना दिख नहीं रहा। तो ऐसे में जो ढांचागत सुधार हैं वो कहाँ आप देख रहे हैं जिसे इम्प्लीमेंट किए जाने की जरूरत है, एक लघु अवधि के लिए भी और दीर्घकालीन नीति के तहत भी? देखिए, दो सेक्टर हैं जो अभी सबसे ज्यादा अहम है एग्रीकल्चर सेक्टर में। उसमें एक तो आपका मार्केटिंग रिफॉर्म्स है और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, दो एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केटिंग। मार्केटिंग में अभी भी जो है काफी हद तक कुछ ऐसी फोर्सेज हैं जो मार्केट को डोमिनेट करती हैं, जो मिडिल मैन है वो डोमिनेट करते हैं। और अभी हम लोग उस लेवल पे एक जिसे कहेंगे आप फ्री मार्केट या एक हेल्दी कंपटीशन का मार्केट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए अभी भी नहीं है। कहीं मोनोपोली है, कहीं उसमें उसका बेसिकली मिसयूज होता है अपने पावर्स का, और उसमें जो कमीशन एजेंट्स हैं या जो कंट्रोल्ड मार्केट्स हैं वो काफी नेगेटिवली इम्पैक्ट डालते हैं फार्मर्स की इनकम के ऊपर। और हमारे फार्मर्स अभी मार्केटिंग साइड को लेकर के एम्पावर्ड नहीं है। तो जब तक उनको एम्पावर करने के लिए हम लोग इफेक्टिव स्टेप्स नहीं लेंगे, कुछ चीजें हुई हैं जैसे इनाम का एक मसला है कि इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की हमने बात की है, बट उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनका बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं रहा, बहुत वो एनकरेज करने वाले उनके स्टेप्स नहीं है, क्योंकि अभी उन्होंने बहुत कम कमोडिटीज को इनाम के अंडर में रखा है। तो जब ज्यादातर प्रोडक्ट्स को आप उससे बाहर रखोगे तो उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। दूसरे, वो उस तरीके से आगे बढ़ करके उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया, ना फार्मर्स में अवेयरनेस लेकर के आए, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा पॉलिटिकल एक रोल होता है। और जो बेसिकली जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी की जो पॉलिटिक्स होती है और उसमें जिस तरीके से कई बार बहुत करप्शन भी होता है, वो स्टेट गवर्नमेंट्स जो है उस पर अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहते। और एक कार्टेल्स जगह जगह हैं, आप कहीं भी चले जाएंगे जो कमीशन एजेंट्स के कार्टेल हैं, अलग अलग मंडी में अलग अलग कार्टेल हैं। तो हम लगातार बात करते हैं कि ऑफ मंडी सेल के लिए, बट फिर प्राइसेस का कैसे मूवमेंट होगा, क्या प्राइस ठीक से मिल रही है, वेइंग मशीन ठीक से क्या। तो देयर आर मल्टीपल इश्यूज। तो एक तो मार्केटिंग रिफॉर्म्स टू एम्पावर फार्मर्स, दूसरे जो एग्रीकल्चर का जो उससे रिलेटेड बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टोरेज फैसिलिटीज है, ट्रांसपोर्टेशन है, कंट्रोल ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज है। तो ये सारा उनको जो मार्केट से लिंकेज करे और उनका जो वेस्टेज है उसको खत्म करने में जो है काम आए। तो ये स्टेप्स लेने होंगे, तब जाकर के बेनिफिट फार्मर्स को सीधे मिल पाएगा। Right, we actually need a lot of cold storage plants and roads, and some things are happening, but I think it's a work in progress. Well, let's talk about the rupee. Rupee today weakened 74 paise to 70 rupees and 17 paise against the dollar. In previous session, it strengthened 33 paise to 69 rupees and 44 paise against the US currency. How do you explain this rupee? We saw once a few days ago, rupee had jumped 1 rupee, more than a rupee, and in a day, and now we see this weakening happen. Actually, again, this this global developments are affecting rupee. Sometime when oil prices went down, it was good for rupee. Rupee appreciated around that time. But right now, I think this movement is not related to only the energy prices, but what is happening around in the global economy that is affecting the rupee value. हरवीर, रुपए का यानी दो चीज हम समझना चाहेंगे। एक, रुपए में तेज उतार चढ़ाव जो होता है, यानी जो कह लें कि अभी हम देख रहे हैं कभी यानी 1 रुपए से अधिक की मजबूती और कभी 74 पैसे से अधिक की गिरावट। बेशक इसे अंतर्राष्ट्रीय कारक हम मान लें तात्कालिक, लेकिन कुल मिलाकर यह अचानक ऊपर उठना या नीचे गिरना क्या यह अर्थव्यवस्था के लिए सही दर्शा रहा या कहीं कुछ समस्या आड़े आ रही है? नहीं, अगर आप देखें कि रुपये का जो मूवमेंट है, उसका जो रेट है डॉलर के अगेंस्ट, उसमें आप सही कह रहे हैं, बहुत सारे शार्प अप एंड डाउन आए हैं इधर पिछले कुछ 10-15 दिनों में ही है। नहीं, लेकिन अगर आप देखेंगे कि
बहुत ज्यादा डिफरेंस उस तरह से नहीं होता कि एक्चुअली एक तो जो मार्केट है डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करता है, और जब कहीं बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन होती है तब जाकर के आरबीआई इंटरवीन करता है, अदरवाइज मार्केट पे फ्री छोड़ा हुआ है उसको। तो जिस वक्त जैसा मार्केट में डिमांड होती है डॉलर्स की, उसके अगेंस्ट रुपी फिर बिहेव करता है उसी तरीके से, और मोर और लेस रुपये का जो लेवल है वो सेटिस्फैक्ट्री है। इसको हम बहुत अनयूजुअल या इस तरह का डेप्रिसिएशन भी नहीं कह सकते। और ये बात जरूर है कि कभी अचानक जो चेंजेस आते हैं वो फिर बिजनेस डिसीजंस को अफेक्ट करता है। कुछ जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड जो बिजनेसेस हैं, कई बार उन पे कुछ कंपनीज के लिए उनके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है इसका, लेकिन मेरे ख्याल से फिर भी ये कोई बहुत उस तरह का नेगेटिव ट्रेंड रुपी का नहीं है। आइए आगे बढ़ें। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 6 करोड़ में लाभार्थी को गैस कनेक्शन दिया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने खाना पकाने के लिए हरित ईंधन यानी रसोई गैस के इस्तेमाल के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सराहना की। उन्होंने कहा कि मई 2014 तक उज्ज्वला योजना 55% लोगों तक पहुंची थी, जबकि पिछले दिसंबर में इसकी पहुंच 90% लोगों तक हो गई। उन्होंने इस बात पर खुशी जताई कि दिसंबर तक 1 करोड़ 3 लाख लोगों ने रसोई गैस सब्सिडी छोड़ दी, जिससे बेहद गरीब वर्ग तक उज्ज्वला योजना का विस्तार करने में मदद मिला है। हरवीर, किस रूप में उज्ज्वला योजना कह लें कि समाज के जो वंचित लोग हैं उनकी जिंदगी में उजाला लाने की दिशा में आगे बढ़ रहा? देखिए, एक्चुअली अगर आप कहें जो क्लीन फ्यूल है, जो साफ ईंधन है, वो स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और लोगों के जो लाइफ का जो एक एस्पिरेशनल वैल्यू होता है उसको बढ़ाता है बेसिकली, क्योंकि हर समाज के हर वर्ग को एक आशा होती है, उम्मीद होती है कि उसका जो जीवन स्तर है उसमें सकारात्मक बदलाव हो। और ऐसे में बीइंग ए वेलफेयर स्टेट, ये हमारी सरकार का दायित्व बनता है कि लोक कल्याणकारी राज्य होने के नाते जो वंचित वर्ग है समाज का, उसको किस तरीके से वो सुविधाएं उसके दायरे में लाई जाएं जिनसे वो अभी तक वंचित है, क्योंकि उसके पास उस तरह का इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं है। साथ में इसमें यह भी है कि बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का भी एक मसला है। ये पहले उस तरीके से नेटवर्क नहीं था, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क उस तरह नहीं थे छोटी जगहों पे, गांव में, और ये सब सुविधाएं आपके जो अर्बन सेंटर्स हैं वहीं तक सीमित थी। लेकिन ये संभव हुआ है और लोगों को इसकी उम्मीद बनी है कि वो इसमें अपनी हिस्सेदारी उनको मिलेगी, खासतौर से जो गरीब वर्ग के लोग हैं। और क्योंकि ये डबल इसमें उस तरीके का रास्ता अपनाया गया है कि एक तरफ जो लोग इस तरीके का संपन्न लोग हैं, जो सुविधा जिनके पास है और वो अफोर्ड कर सकते हैं, वो मार्केट प्राइसेस पे उसका कंज्यूम करने का पैसा दे पाएं, और दूसरी तरफ जो कमजोर लोग हैं कि उनको ये सुविधा मिल पाए। तो आई थिंक ये दोनों पॉइंट पे हम लोग ठीक से आगे जा रहे हैं। Right. We move on to oil now. Oil today fell towards $53 a barrel under pressure from rising output in major OPEC and non-OPEC producers and due to concerns about an economic slowdown that could weaken demand. Brent crude prices yesterday ended at around $53.40 per barrel, while WTI prices closed at around $45.10 per barrel when reports last came in. Harvey, global politics seems to revolve around this energy resource, oil, till of course we start depending on alternative and renewable energy sources. At $53 a barrel, how do you see Yes, actually, this is a very good thing for India if prices goes down. And at the same time, because again there is some fear about the global slowdown and that will affecting the demand on the negative side. But it is good for India. आइए चलें सर्राफा बाजार। दिल्ली सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की चमक तेज रही। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मजबूती के रुख से सोने का मूल्य 30 रुपए बढ़ा, 32,500 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। चांदी 100 रुपए उछलकर 39,350 रुपए प्रति किलो हो गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने का मूल्य बढ़कर $1,286.57 प्रति आउंस हो गया। चांदी अपने पूर्व स्तर $15.45 प्रति आउंस पर टिकी रही। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से हम आपको धन्यवाद देने से पहले सोने की चमक पर थोड़ा सा आपसे राय ले लेंगे। किस दिशा में जा रहा सोना? देखिए, सोना का काफी कुछ तो आपका रुपी कैसे मूव करता है उससे डिपेंड करता है। और
जहां तक मैं अभी भी कहूंगा कि जो एज ए इन्वेस्टमेंट एसेट सोने का उस तरीके का चाह नहीं रहा है। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से हरवीर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। And now the headlines. Benchmark domestic stocks decline around 1%. Sensex closes below 36,000 mark. Nifty ends under 10,800 level. Rupee weakens 74 paise to trade above 70 rupees per US dollar. And Vice President hands over 6 crore Ujjwala gas connection to the beneficiary. And that's all we have for you in this edition of Market Mantra. It's myself, Lalima Neja Dang, and my co-anchor, Manoj Pathak, bidding adieu. Goodbye. Namaskar. Market Mantra.